हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच नॉलेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी। आज के वीडियो में इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, तो बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी? Industrial radiography is non-destructive testing, that is an NDT method used to inspect the internal structure and components by passing X-rays or gamma rays through them and recording the resulting image on a film or digital detector. In other words, industrial radiography is the technique of using X-rays or gamma rays to detect internal defects such as cracks, porosity, inclusion, and lack of fusion in industrial component without damaging them. So, रेडियोग्राफी क्या है? ये एक ऐसा ऑपरेशन है कि इसके माध्यम से वेल्डिंग जॉइंट्स के अंदर जो डिफेक्ट्स है, जैसे कि क्रैक्स या पोरोसिटी या इंक्लूजन या लैक ऑफ फ्यूजन्स, यानी कि वेल्डिंग डिफेक्ट में कुछ क्रैक डेवलप हुआ है या उसमें कुछ कैविटी डेवलप हुई है या उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स जैसे फ्लक्स है या स्लैग अंदर फंसा हुआ है या उसमें दोनों मेटल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं या वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल्स आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसे आदि डिफेक्ट्स रेडियोग्राफी टेस्टिंग के माध्यम से जानकारी मिल जाते हैं। So इसमें without damaging the job and without damaging the equipments, we can take the RTA test safely by using all the necessary safety precautions. So this is the general arrangement of RT test. इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है या कोर हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। So this is the first part called as the isotope camera. This is the main core components. So at the one end, drive cable is attached. By forwarding or reversing this handle, we can operate the source which is kept inside the isotope camera. Then this end, nose tube is attached at the time of RT test, so that by operating these handles we can move this source up to this nose tube end and then expose this welding areas, welding joints, so that we can check the any defects by attaching this film. From one side the source is exposed and this other side film is tied around this job, so that after exposing this source we can take the images on this film which will be developed afterwards in the lab. And this is the radiation meters to check the radiations level surrounding the workplace. So this is the inside view of the isotope camera. So this in this tube, this S-type tube, the source is kept here, and by taking outside or taking back is possible by using this handle. So by connecting this drive cable and nose tube, this RT test is taken carefully. So this is about the core components. So where we can take the RT test या RT test करने के लिए कौन सी जगह में हम कर सकते हैं? So basically it is RT test can be done at the three areas या three places. First one is the shop floor locations
after manufacturing the jobs or manufacturing the vessels or equipments, we can take the RT test at its place only. But we have to take the necessary precautions like the barricades, displaying of boards, then warning signages, then flashlights, and of course necessary work permit systems. And by communicating these nearby work areas or workers, this type of RT test can be taken at the same place or at shop floor. Then this is the second place called as the test room. This is a design the test radiography test rooms by keeping all the safety facilities like the signages, then these machines where it is kept at long distance outside the rooms. Then this all the sources and everything is kept inside the rooms, then displaying the boards, then warning signs. So same precautions you have to take. Then shielding, properly shielding around these jobs, it is arranged. So this is a permanent arrangements kept for the RT test. And this is the locations where we can take the RT at the open fields like the refineries area or gas plants, where we can take the test of the pipeline joints by keeping all the necessary arrangements like the signboards, then by using the radiation survey meters and flashlights, etc. So similar arrangements has to be done at the three places. So by using the safety methods, we can take the RT test at the three areas which we have discussed now. So we'll go to next. Now, what are the hazards of industrial radiography? इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में क्या क्या हजार्ड्स मौजूद होते हैं? सो फर्स्ट वन इज़ द रेडिएशन एक्सपोजर्स. ऑफ कोर्स इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस इज़ नॉट टेकन, तो इसमें रेडिएशंस जोन में वर्कर्स आ सकते हैं या वो एक्सपोज हो सकते हैं. देन एक्सीडेंटल एक्सपोजर्स, ऑल ऑफ सडन्स कोई कर्मचारी विदाउट अननोइंगली अपना रेडिएशन जोन में आ सकता है, या जब RT टेस्ट चालू होता है तो उसके अंदर आ सकते हैं, तो उस टाइम भी उनको खतरा मौजूद रहता है. लॉस्ट और स्टक रेडियो एक्टिव सोर्स, यानी कि जो सोर्स गामा सोर्स यूज़ करते हैं, सो वो कभी कभी ट्यूब के अंदर फंस जाता है या कभी कभी मिस होता है. तो ऐसे केस में भी वर्कर लोग को एक्सपोज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है. इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, या प्रॉपर आपको उसमें जानकारी नहीं है या इक्विपमेंट हैंडलिंग की मेथड्स क्या है उसको पता नहीं है, फिर भी आप एक्सरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उस टाइम भी आपको एक्सपोज होने की ज़्यादा संभावना रहती है. देन रेडियोग्राफी हजार्ड्स के साथ ही साथ जब कन्फाइन स्पेस में आप काम करेंगे तो इसमें अगेन सफोकेशंस और वेंटिलेशंस के इशू आ सकते हैं. सो ये भी एक खतरा निर्माण होता है. वर्क एट हाइट्स, यानी कि ऊंचाई पर आपको RT टेस्ट लेना है, तो वर्क एट हाइट इज़ अ वन हजार्ड्स विच इज़ एडेड in addition to radiography hazards. And electrical hazards is also added as when we use the X-ray radiography. So electricity जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ electrical hazards create होने की संभावना बढ़ जाती है. So these all these hazards while taking the RT test. Now health effects, इसमें शरीर पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं रेडियोग्राफी टेस्ट टाइम या RT टेस्ट के टाइम्स, या रेडियोग्राफी में कंटिन्यूसली आप काम करेंगे तो अपने शरीर पर क्या क्या असर हो सकता है.
First one is the short term effects and second one is the long term effects. So इसमें हम डिवाइड किया है. सो फर्स्ट वन इज़ द शॉर्ट टर्म में क्या क्या हो सकता है. एक नौसिया या वोमिटिंग्स, देन फटीग, स्किन रेडनेस, हेयर लॉस, रेडिएशन बर्न्स. ज़्यादातर हेवी डोज लग गया तो इसमें उल्टी हो सकती है, थकान हो सकती है, स्किन रेडिश स्किन हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, रेडिएशन बर्न यानी कि स्किन या स्किन बर्न हो सकती है. तब जो इफ़ेक्ट्स है ये अपने शरीर पर दिखाई देते हैं. लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट्स यानी कि आप कंटिन्यूसली रेडियोग्राफी में काम करेंगे या आरटी टेस्ट कंटिन्यूसली कर रहे हैं या फील्ड में काम कर रहा है. सो रेडियोग्राफी में कैंसर होने की संभावना रहती है. देन कैटरैक्ट्स यानी कि मोतीबिंदु बोलते हैं हम लोग, वो भी होने की संभावना रहती है. एंड देन इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, ये भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन आवर बॉडी ड्यू टू कंटिन्यूस रेडिएशंस. देन बोन मैरो डैमेजेस, अंदर का अस्थि मज्जा जो है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है. एंड देन जेनेटिक इफेक्ट्स यानी कि आनुवंशिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं. सो दीज आर द टू इफेक्ट्स आई हैव एक्सप्लेन. नाउ ये तो हजार्ड्स, रेडियोग्राफी हजार्ड्स के बारे में हम देखे हैं. नाउ वी कम टू द सेफ्टी प्रिकॉशंस और द safety measures to be taken during the RT test. First rules that we have to use the ALARA principles. So ALARA principles क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में और भी डिटेल में जानेंगे. मीनिंग ऑफ ALARA इज़ द एज लो एज रिजनेबली अचीवेबल्स, यानी कि आपको मिनिमम टाइम मिनिमाइज करना है, डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है एंड शील्डिंग यूज़ करना है. यानी कि कम समय में आपको आरटी टेस्ट लेना चाहिए. आरटी टेस्ट लेने के टाइम्स आपका रेडिएशन सोर्स और आपका जो कर्मचारी है उसमें डिस्टेंस मैक्सिमम रखना चाहिए. एंड वी हैव टू यूज़ द लीड शील्डिंग या स्ट्रॉन्ग शील्डिंग यूज़ करना चाहिए या लीड पार्टीशन बोलते हैं हम लोग. ये 3 तरीके से हमको सेफ्टी प्रिकॉशंस आरटी टेस्ट में ले सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज ALARA. So this is important. Only trained and authorized personnel should be perform the radiography. जो रेडियोग्राफी या आरटी टेस्ट में कर्मचारी लोग मौजूद है या इन्वॉल्व है, सो उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए एंड ऑथराइजेशन देना चाहिए. वही लोग इस रेडियोग्राफी में काम कर सकते हैं. बैरिकेड एंड क्लियरली मार्क्स द रेडिएशन कंट्रोल एरियाज. प्रॉपरली जैसे हम पहले वाले स्लाइड में दिखाया, प्रॉपरली बैरिकेशंस, साइनेजेस, देन फ्लैश लाइट्स या रिवॉल्विंग लाइट्स, ये क्लियरली मार्क होना चाहिए. एंड साथ ही साथ चेकिंग ऑफ द रेडिएशन लेवल्स. कीप अनऑथराइज्ड पर्सन्स अवे ड्यूरिंग द एक्सपोजर्स. काम करने के टाइम्स थर्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड पर्सन, दूसरे सेक्शन के लोग रेडिएशन वर्क प्लेस में या जहाँ रेडिएशन आरटी टेस्ट चल रहा है वहाँ नहीं आना चाहिए. एंड प्रॉपर पीपीईज एंड साथ ही साथ पर्सनल डोसीमीटर्स और कैलिब्रेटेड सर्वेमीटर्स, इसका इस्तेमाल होना चाहिए. चेक दैट रेडियो एक्टिव सोर्सेज इज़ फुल्ली रिट्रैक्टेड एंड सिक्योर्ड आफ्टर एक्सपोजर्स. काम होने के बाद या आरटी टेस्ट होने के बाद रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो अपना मशीन में आकर रखना चाहिए, ताकि जो अगर वो बाहर रह गया या इम्प्रॉपरली आपका रिट्रैक्ट नहीं हुआ या वो मशीन के अंदर नहीं आया तो काफ़ी कर्मचारी रेडियोग्राफी से या सोर्स से एक्सपोज हो सकते हैं. वी हैव टू फॉलो द AERB रिक्वायरमेंट्स. व्हाट इज़ AERB? Atomic Energy Regulatory Boards. This board is established as per the Atomic Energy Act 1962. साथ ही साथ we have to follow the emergency procedures and the site safety rules and regulations.
So these are all the safety measures and safety precautions during taking the RT test. Now these such type of arrangements shall be taken during the RT tests, as we have already discussed about the barricades, then signages, then flashlights, and proper PPEs and personal dosimeters, then checking of the radiations levels. And this is the room where film is developed of the RT test. So this is all about radiography test. Now we come to ALARA principles. ALARA means as low as reasonably achievables. इसमें three ways से we can control the exposure. First one is the time. That means the source के नज़दीक एम्प्लॉयज़ कम टाइम में रहना चाहिए या कम से कम टाइम में होना चाहिए. देन सेकंड एक्शंस दैट सोर्स एंड द एम्प्लॉई या कर्मचारी में ज़्यादातर ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ना चाहिए during the time of RT test. And third one is the shielding. You have to use the lead shielding in between the employees and the radioactive source. So during this RT test, so by proper keeping the shielding, so person will not be exposed to radiation source. So by applying three ways, we can keep the employees safe from the radiation source. This is important. This is the regulatory requirements. The Atomic Energy Act 1962. इसके अंदर जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है या रिक्वायरमेंट्स है या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, these all rules and regulations we have to follow during using the radiography or using the radiography test. These are some equipments or personal equipments like the personal dosimeters or survey meters. Before taking the RT test, we have to use the radiations levels. And this is a film badge we have to on your chest side while taking the radiography test or doing the radiography work. So friends, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद रहेगा, स्पेशली दोज वर्कर्स और दोज एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन द रेडियोग्राफी फील्ड्स और हु आर इन्वॉल्व इन द RT टेस्ट. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फ़ायदेमंद रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि नए वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं. जय हिंद, जय सुरक्षा.